Dear students, I Professor Kavita Brahmankar, CO Department NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today's topic is 4.4 of Unit 4 and topic name is 1-bit sliding window protocol. The learning outcomes: after watching this video, you will be able to state the meaning of 1-bit sliding window protocol and describe working principle of with NIT sketch. Course outcome that is going to achieve by this video is CO4, analyze error detection or correction and flow control of data in the network. And program outcomes, those are going to map are PO1, basic and discipline specific knowledge, PO4, engineering tools, experimentation and testing, PO6, project management, PO7, lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know error control and flow control and stop and wait technique. Now let us see what is 1-bit sliding window protocol. Sliding window protocols are the data link layer protocols for reliable and sequential delivery of data frames. So sliding window protocol ये data link layer में operate करता है protocol. So second layer पे operate करता है and it is reliable protocol है कि रिसीवर रिलायबल कर सकता है सेंडर पे कि सेंडर ने जो डेटा भेजा है वही डेटा रिसीवर को रिसीव होने वाला है और उसी ऑर्डर में रिसीव होने वाला है. ओके, so the sliding window is also used in transmission control protocol. In these protocols, the sender has a buffer called sending window and the receiver has a buffer called the receiving window. तो नॉर्मली स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो है वो टीसीपी में यूज होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करेगा इसको, दिस स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को. और इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि सेंडिंग जो सेंडर होता है उसके पास एक बफर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंडिंग विंडो एंड रिसीवर के पास भी एक बफर होता है जिसको बोलते हैं हम रिसीविंग विंडो. सो ये जो विंडोज है सेंडर के पास और रिसीवर के पास, तो वो फ्रेम्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है और उनका सीक्वेंस जो है वो मेंटेन करने के लिए यूज होती है. इन 1-bit स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल द साइज ऑफ द विंडो इज 1. विंडो का साइज दोनों भी साइड पे 1 रहेगा. सो द सेंडर ट्रांसमिट अ फ्रेम, वेट्स फॉर इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड देन रीट्रांसमिट द फ्रेम. सो सेंडर जब फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा देन वो फ्रेम ऑटोमेटिकली उस विंडो के अंदर स्टोर हो जाएगी. देन इट वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीवर. जब तक रिसीवर से पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तब तक वो विंडो में से उस फ्रेम को रिलीज नहीं करता है, उसको होल्ड करके रखता है. एंड एक बार उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो उस फ्रेम को वो रिलीज करता है एंड नेक्स्ट फ्रेम जो है वो रिसीवर को फिर से सेंड करता है. लेकिन अगर उसको निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है या फिर काउंटर जो है वो टाइम आउट हो जाता है, क्लॉक आउट ऑफ टाइम हो जाती है, देन वही जो बफर में स्टोर की हुई जो हमारी फ्रेम है वही फ्रेम वो रिट्रांसमिट करेगा इन केस ऑफ डेटा लॉस्ट और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट. सो ये विंडो का यूज है या दिस इज द एम ऑफ द विंडो टू स्टोर द डेटा टिल वी गेट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर. Thus, it uses the concept of stop and wait for the protocol. So, stop and wait जिस तरह से हमने टेक्निक देखी थी सेम टेक्निक ये 1-bit स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करती है. एंड दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. यहाँ पे एट एनी कॉस्ट हमको रिसीवर हमको एक्नॉलेजमेंट देने ही वाला है, इसलिए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यहाँ पे यूज होता है. The acknowledgement is attached along with the next data frame to be sent by piggybacking. Means acknowledgement यहाँ पे attach होगा, जो भी हम next data send करेंगे उसके साथ एक acknowledgement field भी यहाँ पे attach होती है. So the data frames to be transmitted additionally have an acknowledgement field. Okay, so जो भी data frames हम transmit करेंगे उसके साथ एक field होगा acknowledgement field. So acknowledgement field that is of few bits length. The acknowledgement field contains the sequence number of the last frame received without error. So acknowledgement frame में क्या होगा कि last time जिसके लिए जो भी frame हमने भेजा था, okay, उसका sequence number होगा.
the acknowledgement field contains the sequence number of the last frame received without error. तो एक्नॉलेजमेंट लास्ट टाइम हमको किसके लिए आया था, सपोज फ्रेम 0 के लिए हमको एक्नॉलेजमेंट आया था, तो नेक्स्ट फ्रेम हम जब भी सेंड करेंगे उसके साथ पहले फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंड करना जरूरी है, उसका सीक्वेंस नंबर. If this sequence number matches with the sequence number of the frame to be sent, then it is inferred that there is no error and the data frame is transmitted. Okay, so अगर वो sequence number और that matches with the number of the frame to be sent, then हम consider करेंगे कि there is no error, otherwise there is error, और हम उस frame को फिर से retransmit करेंगे. Since this is a bidirectional protocol, the same algorithm applies to both the communicating parties. ये bidirectional protocol है, इसीलिए दोनों भी साइड पे सेम टाइप का algorithm जो है यूज करना जरूरी है. Now let us see the example of one bit sliding window protocol. Case 1 there is no error and case 2 there is data lost. Okay, so this is time out or this is the clock. Then सेंडर इज ए एंड रिसीवर इज बी. सो सबसे पहले हमने हमारे यहाँ पे विंडो का साइज कंसिडर करो कि 1 है. देन सपोज हमने डेटा 0 यहाँ पे सेंड किया है. ओके, A0 यहाँ पे सेंड हुआ है. देन सो फ्रेम 0 हमने सेंड किया है, सो A0. B इज द रिसीवर, सो रिसीवर ने इसके लिए पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा है, दैट इज फॉर 0th फ्रेम, सो B0. देन हमने पहली फ्रेम 1 भेजी है यहाँ पे, सो A1 यहाँ पे गया. देन सेंडर ने B1 के लिए यहाँ पे पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा है, सो B1. ओके, देन हमने नेक्स्ट फ्रेम भेजी है, सेकेंड नंबर की फ्रेम सपोज A2, और इसके लिए भी एक्नॉलेजमेंट आया है B2. ओके, तो यहाँ पे देखिए विंडो का साइज सबसे पहले था 0. ओके, मीन्स इसके पास विंडो का साइज था 0, उसके बाद हो गया विंडो साइज 1 हो गया. लेकिन जैसे ही उसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा है तो विंडो साइज यहाँ पे फिर से 0 हो गया. मीन्स पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आया तो अभी हमारे पास फिलहाल विंडो में कुछ भी नहीं है, तो विंडो साइज हमारा 0 हो गया. फिर अभी फ्रेम यहाँ पे भेज रहे हैं, फिर से हमारा विंडो साइज जो है वो 1 हो जाएगा. ओके, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आएगा फिर से विंडो साइज यहाँ पे 0 बन जाएगा. तो इस तरह से नो एरर केस है. एंड नेक्स्ट इज डेटा लॉस. सो फ्रेम 0 A0, पहली ही फ्रेम है A0 हमने सेंड की थी, तो रिसीवर से उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है और इतने टाइम के लिए वो वैलिड थी फ्रेम. अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है और टाइम आउट हो गया हमारा सेशन, तो रीट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट फ्रेम, वही फ्रेम जो है वो रीट्रांसमिट करेगा सेंडर. एंड देन उसके बाद रीट्रांसमिटिंग के बाद 0 फ्रेम के लिए रिसीवर ने हमको एक्नॉलेजमेंट दिया है. सो दिस इज केस फॉर इन डेटा लॉस्ट. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. सो डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम दिस इज द सेंडर, दिस इज द रिसीवर. So जब हम इनिशियल स्टेज द साइज ऑफ सेंडिंग विंडो इज 0 एंड रिसीविंग विंडो इज 1. ओके, इनिशियली सेंडर का जो साइज है वो 0 है एंड रिसीवर का 1 है. देन आफ्टर फर्स्ट फ्रेम हैज बीन सेंड, जैसे ही पहली फ्रेम सेंड हो जाती है तो हमारे विंडो का साइज जो है 1 सेंडर साइड पे 1 हो जाता है एंड रिसीवर साइड पे भी वो 1 रहता है. आफ्टर द फर्स्ट फ्रेम हैज बीन रिसीव्ड, तो जैसे ही रिसीव हो जाती है हमारी फर्स्ट फ्रेम रिसीवर पे रिसीव हो जाती है, तो ये विंडो का साइज भी अभी 0 हो जाएगा. एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट फ्रेम के लिए यहाँ पे फिर से एक विंडो का साइज जो है रिसीवर साइड पे 1 हो जाएगा. आफ्टर द फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट हैज बीन रिसीव, तो देखिए एक्नॉलेजमेंट जैसे ही रिसीव हुआ तो विंडो का साइज यहाँ पे फिर से 0 हो गया. विंडो का साइज कुछ भी असाइन नहीं किया हमने, एंड यहाँ पे रिसीवर साइड पे विंडो का साइज हमने 1 असाइन किया है. तो जब तक हमको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है रिसीवर से, तब तक विंडो का साइज सेंडर साइड पे 1 होता है, और जैसे ही पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो वो जो साइज है विंडो का वो 0 बना देते हैं. और जैसे ही नेक्स्ट फ्रेम फिर से ये सेंड करेगा सेंडर, तो ऑटोमेटिकली विंडो का साइज फिर से 1 हो जाएगा.
तो इस तरह से this is the example of 1-bit sliding window protocol. So let us summarize today's lecture. Today we have studied what is 1-bit sliding window protocol. यहाँ पे विंडो का साइज 1 होता है दोनों भी साइड में, either 0 और 1. सेंडर साइड में it is 0 और 1 and रिसीवर साइड पे always it is 1. That is why it is called 1-bit sliding window protocol. And we have seen the working principle of it with neat sketch. In case of no error we have seen working principle of it, and in case of damage frame we have also seen working principle of it. So thank you students for watching the video. Keep learning and enjoy learning.